Hello students, my name is Hira Shaheen and today we are going to start with the new lecture series on C programming. So we'll see first introduction to C. So in this C introduction part, we'll see keywords and identifiers we use in C language, variables and constants, data types used in C language, and then C input output statements, and then what are the operators we use in C, and we'll see some examples on introduction to C programming. Okay, so just wait. See, keywords and identifiers. We'll see there are some character sets in which we use some alphabets, digits, and what are these alphabets and digits we use in as a character set, we'll see just now. So what is this character set? A character set is a set of alphabets, letters, and some special characters that are valid in C language. So for alphabets, we use uppercase, capital A, capital B, capital C to Z. And for lowercase also, it is A, small a, B, C to Z. C accepts both lowercase and uppercase alphabets as variables and functions. What does it mean कि आप functions और variables का name अगर जब भी choose करते हैं, select करते हैं, तो we can use these alphabets in selecting the name, and also we can use digits from 0 to 9, and some special characters are there. They said that like comma, less than, greater than. These are the symbols. You can see the list of all the symbols in some popular books of C programming. I recommend you can use Balaguru Swami. Okay, book by Balaguru Swami. Spelling I am not sure, but you can ask for this book. Okay, so now these are the special characters: comma, less than, greater than, dot, hyphen, opening bracket, closing bracket, semicolon, dollar, like colon, percentage, square bracket, open square bracket, closing square bracket, hash. These are some special characters. There are many more special characters also. So you can go through that list and you can use this list. Use this characters as a character set. And we have some white space characters also, that is called blank space, new line, horizontal tab, carriage return, and form feed. So next is keywords. The keywords are predefined reserved words used in programming that have a special meaning to the compiler. Keywords are part of the syntax and they cannot be used as an identifier. Identifier का मतलब क्या? जो keywords हैं, predefined keywords, you cannot use it as a variable name. Variable को ही identifier कहते हैं. ठीक है, तो जैसे हमें एक वेरिएबल बनाना है मनी, तो हम उसको जो कीवर्ड्स प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं जैसे इंट है, फ्लोट है, and there are many more keywords. We cannot use this as a variable name. This is a data type which are already defined keywords like hash, include for statement, if. These are the keywords. Many more keywords. You can get a list of keywords from the book which I have just discussed, or any other book you can use. So C keywords has auto, double, int, struct, break, else, long, switch, case. These are keywords. और जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे आगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि we'll use these keywords wherever required.
जैसे हम जब स्विच स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो स्विच का यूज होगा, तो स्विच, these are keywords. We cannot use these keywords as a variable name or identifier name. Again, I am telling you, identifier is the same meaning as variable. So you can go through this list. Now, how we will choose to make the identifier name. So identifier refers to name given to entities such as variables, functions or structures. तो identifiers का meaning क्या है कि variable का name ही नहीं, functions और structures का name को भी हम जो name उसको देंगे उस entity को, उसको भी हम identifiers कहते हैं. तो identifiers must be unique. एक प्रोग्राम में जब आप identifiers यूज कर रहे हैं, different identifier, then all should be unique. They are created to give a unique name to an entity to identify it during the execution of the program. Okay, suppose int num1 num2 int total. So हमें suppose we want to find the sum of two numbers. So first number we denote with num1, second number with num2, and we want the addition of sum of both num1 and num2 to store it in the variable or identifier total. So we give it some name which are meaningful. There are some rules for naming identifiers, like rules for naming identifier. Valid identifier can have letters, digits and underscores. ठीक है, एक valid identifier में क्या होना चाहिए? Letters, digits and underscore. And letters में क्या, upper case lower case दोनों ही ले सकते हैं. दूसरा क्या है, first letter of an identifier should be a letter or an underscore. मतलब letter और underscore होना चाहिए first letter. Digit नहीं होना चाहिए. It will be letter or underscore. Next, you cannot use keywords in the identifier name like int, for, while, do while. You cannot take these names as an identifier. And there is no rule how long an identifier can be. However, you may run into problems in some compilers if the identifier is longer than 31 characters. So better choose the identifier name less than 31 characters or maximum 30 characters. Okay, but there is no rule that you should choose only to up to 31 characters. But it is better because in some compiler it might be face some problem. Now next thing we'll see now. See variables. Variables we have just seen. Variables, constants and literals. So constants and literals are almost similar in meaning because they both are fixed. तो वेरिएबल क्या होती है? वेरिएबल इज अ कंटेनर और स्टोरेज एरिया टू होल्ड डेटा.
कंटेनर और स्टोरेज एरिया टू होल्ड डेटा। हम लोग क्या वेरिएबल बनाते हैं ताकि हम कंटेनर बना सके हम डेटा को उसमें स्टोर करने के लिए या होल्ड करने के लिए। तो इसको हम कह सकते हैं कि क्या है, स्टोरेज एरिया है। और जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं और उसका नाम हम सेलेक्ट करते हैं तो क्या एक्चुअली हम क्या करते हैं कि मेमोरी में हम उसके लिए स्पेस फिक्स कर लेते हैं कि हमें इस डेटा टाइप का हर डेटा टाइप का कुछ ना कुछ साइज होता है, उतना साइज हम मेमोरी में फिक्स कर लेते हैं और ये ऑटोमेटिकली होता है। इसमें आपको नहीं करना, ये मेमोरी एलोकेशन कर ये है कि इसको कौन सा एरिया या मेमोरी लोकेशन वो उस वेरिएबल को अलॉट करता है। बट जब भी हम वेरिएबल का नाम यूज करेंगे तो ये इट विल access that location and pick up the value. Suppose we named num1 one variable and we want to store some value in num1 like 5. तो ये num1 क्या है, इस स्टोरेज स्पेस का है। सपोज मेमोरी में इसको ये लोकेशन मिला है तो ये इसका नाम हो गया num1 और यहाँ पे ये वैल्यू स्टोर हो गया 5। तो जब हम num1 को जहां भी एक्सेस करेंगे तो वो नंबर उस मेमोरी लोकेशन पे जाएगा। सपोज इस मेमोरी का लोकेशन का नंबर है 2000, इस एड्रेस पे जाएगा, ये एड्रेस कहलाएगा। इस एड्रेस पे जाएगा और उस एड्रेस में जो भी वैल्यू स्टोर होगा, जैसे यहाँ पे क्या है 5 है, तो जब num1 लिखेंगे तो वो वैल्यू क्या उसकी लेगा 5 ले लेगा। उसी तरह सपोज दूसरा एक वेरिएबल है num2, इसका मेमोरी लोकेशन सपोज ये अलॉट किया गया है 2050। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, सपोज इसकी वैल्यू है 10। तो जब हम num1 प्लस num2 लिखेंगे, num1 का मतलब क्या है कि मेमोरी लोकेशन 2000 पे जाएगा और वहां पे जो इसकी वैल्यू होगी वो वैल्यू यहाँ पे ले लेगा, प्लस num2 पे मेमोरी लोकेशन 2050 पे जाएंगे और यहाँ जो वैल्यू है उसको लेकर के उसको ऐड कर देगा और ये हो जाएगा 15। तो फाइनली इसमें क्या आ गया, num1 प्लस num2 में 50 हो जाएगा। अब हम चाहें तो इसको किसी और वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं जैसे टोटल के नाम से, तो ये टोटल में 15 स्टोर हो जाएगा। तो वेरिएबल कहने का मतलब क्या है कि ये एक स्टोरेज एरिया है टू होल्ड डेटा। टू इंडिकेट द स्टोरेज एरिया ईच वेरिएबल शुड बी गिवन अ यूनिक नेम, जिसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। तो वेरिएबल्स को भी हम आइडेंटिफायर कहते हैं। वेरिएबल्स हो गया या फिर फंक्शन का नेम हो गया या स्ट्रक्चर का नेम हो गया, दिस ऑल आर आइडेंटिफायर्स। तो वेरिएबल variable names are just the symbolic representation of memory location. Now, so rules for naming a variable. तो जिस तरह से हमने अभी देखा कि आइडेंटिफायर को नेम करने का ये रूल्स था, उस तरह से रूल्स है आपके वेरिएबल को भी नाम देने का। तो क्या रूल्स है वो अभी हम लोग देखेंगे। A variable name can only have a letters, जैसे हमने आइडेंटिफायर्स में देखा था, यानी कि अपर केस, लोअर केस, लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर्स, ये तीनों वैलिड होंगे। यानी कि लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर जो आपने उसमें देखा है। और लेटर्स में क्या होंगे, अपर केस लोअर केस दोनों होंगे। दूसरा क्या है, फर्स्ट लेटर ऑफ अ वेरिएबल शुड बी आइदर अ लेटर और अंडरस्कोर। तो इसमें भी क्या है, जैसे पहला क्या होना चाहिए, फर्स्ट लेटर, पे फर्स्ट लेटर। फर्स्ट लेटर कहने का मतलब है क्या, जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिस भी लेटर से, वो क्या होना चाहिए, लेटर हो या फिर अंडरस्कोर हो। लेटर का मतलब क्या हो सकता है,
ए से जेड तक स्मॉल लेटर में या कैपिटल लेटर में, और अंडरस्कोर, यही दो चीज हम पहला लेटर में यूज कर सकते हैं, है ना। पहला लेटर जैसे हमने num1 लिखा है, तो ये क्या है, ये इसका पहला लेटर है, तो ये आप आइदर लेटर और अंडरस्कोर ले लेंगे, डिजिट्स नहीं ले सकते हैं। थर्ड क्या है, देयर इज नो रूल ऑन हाउ लॉन्ग अ वेरिएबल नेम कैन बी, तो यहाँ भी कोई रूल नहीं है, सेम एज इट इज जैसा मैंने आइडेंटिफायर में बताया है। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट आपका कि यहाँ पे सी जो है वो स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है। स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज का मतलब क्या है? स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज का मतलब है कि आपका जो अपर केस है और लोअर केस है, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। अगर आपने num1 लिखा है और दूसरा कोई कहीं पे आप num1 से डिफाइन कर रहे हैं वेरिएबल को, और जब आप इसको एक्सेस कर रहे हैं तो num लिख रहे हैं num1, so it will not access this. They both are different. So it will give you error. आपने डिफाइन किया num1 और जब आप उसको यूज कर रहे हैं तो कैपिटल एन नम लिख रहे हैं, कैपिटल एन यू एम, कैपिटल एन एंड देन um1, तो बाकी तो सारे सेम है बट पहला लेटर अलग है, या कोई भी लेटर अलग होगा स्मॉल में कैपिटल में, तो भी एरर शो करेगा। ठीक है, या फिर हो सकता है कि ये आप दूसरा कोई वेरिएबल बना लें, तो दे बोथ आर different variable names and it can hold different values also, and if you want you can store the same value to both the variables, but the thing is that they both are different because C is a strongly typed language. Now what is literals? Literals क्या होते हैं? Literals constants होते हैं। जो कॉन्स्टेंट्स अगर हमको किसी वेरिएबल में स्टोर करना है या कुछ ऐसा है जो जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, वहां भी हम लिटरल्स का यूज करते हैं। तो लिटरल्स आर डेटा यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग फिक्स्ड वैल्यूज, दे कैन बी यूज डायरेक्टली इन द कोड। तो उस तरह के वैल्यूज हम उस वेरिएबल को असाइन कर दें कि ये लिटरल है, तो वो हम डायरेक्टली उसको उस वेरिएबल को एक्सेस करेंगे, यानी लिटरल को, एंड उसका जो भी वैल्यू फिक्स वैल्यू है वो उसको यूज करेगा। जैसे मान लीजिए आपने क्या है, पाई है, पाई की वैल्यू 3.14, आपने इसको डिफाइन करना है कि ये एज अ लिटरल है, तो इसको आपको उस तरह से डिफाइन करना होगा कि ये लिटरल है और इसकी वैल्यू फिक्स्ड रहेगी। अब नेक्स्ट है हम लोग कुछ न्यूमेरिक लिटरल्स को देख रहे हैं कि न्यूमेरिक लिटरल्स किस तरह के होते हैं। जैसे लिटरल्स में ही कई तरह के लिटरल्स हो सकते हैं, स्ट्रिंग भी हो सकता है, न्यूमेरिक भी हो सकता है। तो न्यूमेरिक लिटरल्स में जो लिटरल्स नंबर से एसोसिएटेड है वो न्यूमेरिक लिटरल्स कहलाते हैं। उसमें हम इंटीजर भी हो सकता है। अब इंटीजर कब होगा? जब हमारे वैल्यूज में फ्रैक्शनल और एक्सपोनेंशियल पार्ट नहीं होगा तो हम उसको इंटीजर्स कहते हैं। और उस इंटीजर्स में भी तीन तरह के सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं इंटीजर लिटरल्स, जिसमें डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ये सारे हो सकते हैं। डेसिमल को डिनोट करने के लिए हम क्या जानते हैं कि इसका बेस क्या होता है? 10 होता है।
ऑक्टल का बेस 8 होता है और हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है। ना फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स में क्या होगा कि वैल्यूज जो है डेसिमल में होंगी, है ना। तो उस वैसे केस में जब हम किसी भी लिटरल को जब डिफाइन कर रहे हैं तो अगर उसकी वैल्यूज डेसिमल में है तो वो क्या कहलाएगा, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं लिटरल। तो कैरेक्टर लिटरल में क्या है, जब भी हम डिफाइन करेंगे तो उसके सिंगल कोट्स में वैल्यूज देते हैं, जैसे कैरेक्टर 1 और ये सिंगल कोट्स में ए। तो ये क्या हो गया, कैरेक्टर लिटरल हो गया। अब नेक्स्ट कुछ है स्केप सीक्वेंसेस हैं। स्केप सीक्वेंसेस हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ स्केप सीक्वेंसेस हैं जो डिफाइंड है, उनको आप लोग एक बार सबको देख लेंगे। तो इसका भी एक लिस्ट होगा जो आपको बुक में मिलेगा। अब यू कैन सर्च दिस स्केप सीक्वेंस। स्केप सीक्वेंस क्या है, जब हमको कुछ जैसे सपोज हमको बैक स्पेस यूज करना है, फॉर्म फीड यूज करना है, तो sometimes we use these things in print statement। हाँ, तो उसके लिए बैक स्लैश के लिए स्लैश बी होता है, फॉर्म फीड के लिए स्लैश एफ होता है, न्यू लाइन के लिए स्लैश एन होता है, रिटर्न के लिए स्लैश आर, टैब के लिए स्लैश टी, हॉरिजॉन्टल टैब के लिए, वर्टिकल टैब के लिए स्लैश वी। बैक स्लैश अगर प्रिंट करना है तो डबल बैक स्लैश देना पड़ता है, और अगर हमको सिंगल कोटेशन मार्क देना है तो बैक स्लैश उसके बाद कोटेशन मार्क, तब फिर ये कोटेशन मार्क को लेता है। उसी तरह से अगर हमको डबल कोटेशन मार्क देना है तो बैक स्लैश के बाद डबल कोटेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क लेना है तो उसके लिए भी बैक स्लैश के बाद क्वेश्चन मार्क, और नल कैरेक्टर के लिए भी बैक स्लैश के बाद 0। So these are escape sequences, and we can have string literals also। string literals को जब हम डिफाइन करते हैं तो कैसे लिखेंगे, जैसे string 1 equal to PROGRAMMING। ये जब वर्ड्स है, स्ट्रिंग क्या होता है, जब हम कई सारे लेटर्स को एक साथ जोड़कर हम लिखते हैं, यानी वर्ड्स, जो वर्ड जैसे बनता है कोई वर्ड, तो वो क्या है, वर्ड कभी भी सिंगल लेटर का हम लोग सिर्फ एक ए ही है जो जानते हैं हम लोग, जिसको हम लोग वर्ड कहते हैं। अदरवाइज वर्ड्स जो है आपके कम से कम 2-3 लेटर्स के रहते हैं। उसके बाद उसको जब हम डिफाइन करते हैं वर्ड्स को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो जब हमको उसको अगर इनिशियलाइज करना है, स्ट्रिंग लिटरल बनाना है, जैसे स्ट्रिंग 1 को, तो हमको क्या करना होगा, डबल कोट्स के अंदर इसको देना होगा, तो ये स्ट्रिंग लिटरल्स कहलाएगा। और सिंपल कांस्टेंट्स क्या हो गए, if we want to define a variable whose value cannot be changed, you can use the const keyword। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, const keyword यूज करना होगा कांस्टेंट्स बनाने के लिए। कॉन्स्ट कीवर्ड हमको आगे में ऐसे करके लगा देना होता है, कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो। जैसे हमको अगर हमारा जो पाई है वो डबल टाइप का है, तो हमने यहाँ पे कॉन्स्ट लगाया डबल पाई इक्वल टू 3.14। तो ये कॉन्स्ट कीवर्ड लगाने से, ये सी जो है स्मॉल में, कॉन्स्ट कीवर्ड लगाने से इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू कांस्टेंट होगी, फिक्स्ड रहेगी। हम लोग कांस्टेंट को हैश डिफाइन से भी डिफाइन करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे।